Good morning, everyone. So, the subject what I am going to teach in this semester is Accountancy and Financial Management 2. Now, let us see what all topics you have in this subject. Now, let me start with the slideshow first. So, the syllabus for the subject, you have the first topic called the accounting for from incomplete accounts. Now what do you mean by incomplete accounts? Incomplete accounts means the everything, the clear information about all the accounts is not given. That is, some little bit information is, जैसे you all know that you have we have double entry system. So double entry means what? There are two effects for every account, debit and credit. So this is nothing, this chapter is the same chapter which you have done in your 12th standard, single entry. This is the advanced version of single entry, and I will be starting with this chapter today. So in a while, I will explain you in detail about this chapter. And let us see what is the second chapter you have in your syllabus. You have consignment accounts. Now what do you mean by consignment? The consignment account, so in this account what happens, there are two parties, and consignment account is a contract, is an agreement between two parties in which the one person supplies the goods to another person, and the other person, what does he do? He, on behalf of the first person, sells the goods in the market or to the concerned party. So यहाँ पे क्या होता है, consignment account is a agreement between two parties in which the first person, that is the consigner, क्या बोलते हैं हम इसको, consigner supplies goods to the consignee. Consignee can also be called as the agent, and this agent, what does he do? He sells the goods to the buyers. He sells the goods to the buyers in the open market. So यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ यूज होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, suppose I am a farmer and I produce some agriculture products, agricultural commodities. जैसे for example, suppose it is rice. तो क्या हो रहा है? आई एम अ फार्मर हु मैन्युफैक्चर, हु प्रोड्यूस, सॉरी नॉट मैन्युफैक्चर, आई प्रोड्यूस राइस. सो तो राइस, मेरा काम क्या है? राइस प्रोड्यूस करना. तो उसको बेचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. आई एम बिजी विद द प्रोडक्शन ऑफ राइस. सो आई, what I am doing, I am concentrating on rice production. So I appoint a second person who on my behalf will sell this rice in different markets. सो मेरा काम क्या है? राइस प्रोड्यूस करना. मैं राइस को बेचने के लिए एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट करती हूँ, हु इज द कंसाइनी और द एजेंट. वो मेरे बिहाफ में राइस को मार्केट में सेल करेगा, लेकिन वो फ्री में सेल नहीं करेगा, वो कमीशन चार्ज करेगा राइस को सेल करने के लिए. सो द इन द कंसाइनी कंसाइनर रिलेशनशिप, व्हाट वी हैव टू पे टू द कंसाइनी, वी हैव टू पे कमीशन. और जैसे ही पूरा राइस सेल हो जाएगा, मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा. और कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी विल चार्ज कमीशन. जैसे 1,00,000 रुपया सेल हुआ, उसमें कंसाइनी ने 10% कमीशन लिया, तो 10,000 रख के पूरा 90,000 मुझे वापस मिलेगा. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस एग्रीमेंट इज नोन एज कंसाइनमेंट. So iska accounting procedures we will be seeing in the chapter consignment account. या तो ऐसे भी हो सकता है, I am a seller who sell in
वन पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, तो मुझे क्या करना है, नागपुर में, पुणे में, यहाँ सब भी गुड्स को सेल करना है, तो मैं क्या करूँगी, एक एजेंट को, एक कंसाइनी को अपॉइंट करूँगी जो मेरे बदले में गुड्स को पुणे एंड नासिक में सेल करेगा। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो कंसाइनर, आई एम फोकसिंग ऑन सेलिंग द गुड्स इन मुंबई मार्केट। तो मुझे अभी क्या करना है, मेरे गुड्स को मुझे पुणे मार्केट में और नासिक मार्केट में भी सेल करना है। तो इसलिए मैं एक कंसाइनी को अपॉइंट करूंगी जो मेरे बिहाफ में ये गुड्स को ये दो मार्केट में सेल करेगा। तो ये फ्री में सेल नहीं करेगा। व्हाट विल ही चार्ज? दैट पर्सन विल चार्ज द कमीशन to sell the goods in other markets। तो दैट, एंड जो भी एक्सपेंसेस होगा या कोई भी लॉस होगा तो वो किस, हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? ओनर ऑफ द गुड्स इज द कंसाइनर। ये गुड्स मेरे हैं, कंसाइनर का है, जिसने क्या किया, कंसाइनी को अपॉइंट किया टू सेल द गुड्स। तो the consignee will, what will the consignee do? He will concentrate on selling the goods and बाद में लास्ट में मुझे सेल प्रोसीड्स मिलेगा। सारे गुड्स को बेचने के बाद जितना भी पैसा मिलता है, कंसाइनी वो गुड्स, वो पैसे को मुझे ट्रांसफर करेगा टू द कंसाइनर ऑन deducting the commission, on deducting the commission, that is consignment accounts. Third one, we have the third chapter known as the branch accounts. The third chapter is known as branch account. Now what do you mean by a branch? Branch is the unit of the subunit of the main unit, that is the head office. So what is the branch? Branch क्यों सेटअप करते? फॉर एग्जाम्पल, branch is the unit of the head office. तो head office is the main branch. and if I suppose मेरा एक ऑफिस है suppose चेंबूर में, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो मैं चेंबूर के सारे कस्टमर्स को कवर करती हूँ एंड नियर बाय एरिया के लोग भी आते हैं टू परचेज गुड्स फ्रॉम माय चेंबूर ऑफिस। चेंबूर में जो मेरा बिजनेस है वहां पे आजू बाजू के लोग आते हैं। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे थाने एरिया में भी गुड्स को सेल करना है। तो थाने एरिया से कोई चेंबूर में इतना दूर नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे बिजनेस को थाने में भी सेट करने के लिए आई ओपन अ ब्रांच इन थाने। नाउ द मेन ऑफिस इज इन Chembur, the head office is in Chembur and the branch is set up in Thane। तो थाने ब्रांच में भी क्या हो रहा है, थाने के जितने भी लोग हैं वो लोग अभी उनको चेंबूर आने का जरूरत नहीं है, बिकॉज द ब्रांच इज सेट अप इन थाने एरिया। सो आई विल डू माय बिजनेस इन थाने एरिया। तो ब्रांच को ओपन होने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? हेड ऑफिस से। तो ईयर एंड में ब्रांच अपने बुक्स को बंद करके सारे अकाउंट्स किसको सेंड करेगा? हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड डिसाइड कि ब्रांच में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन ब्रांच को अपने सारे अमाउंट्स, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी कुछ होता है, किसको, सब अपने अकाउंट्स किसको सबमिट करना पड़ता है? हेड ऑफिस को। देयर आर टू सिस्टम इन ब्रांच अकाउंट, वन इज स्टॉक मेथड एंड द अदर वन इज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये क्या है, दैट यू विल अंडरस्टैंड better when we will start up with the branch account chapter. And the last chapter what we all have is fire insurance claim. Now what do you mean by fire insurance claim? Means businesses क्या करती है, हमेशा एडवांस में इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है फॉर फायर। मतलब अगर बिजनेस में कभी भी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ फायर, तो वो उससे प्रोटेक्शन के लिए एडवांस में व्हाट विल द बिजनेस डू? इट विल टेक अ इंश्योरेंस, it will enter into a insurance contract with the insurance company for protection against fire.
तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस में हम हमेशा देखेंगे दैट देयर वाज अ ऑकरेंस ऑफ फायर एंड द कंपनी विल रिक्वेस्ट द इंश्योरेंस कंपनी कि कितना क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से. ऑलवेज रिमेंबर दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, इट इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉसेस. तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अपने एक वैल्यूअर को सेंड करेगी टू द स्पॉट वेयर फायर, where there is loss because of fire. तो the valuer will value कितना goods का loss हुआ है, क्या loss हुआ है, उसके हिसाब से the compensation will be decided by the insurance company. The claim will be decided. Compensation means the claim amount which will be paid by the insurance company to the business. That अमाउंट हैज टू बी डिसाइडेड. तो ये चैप्टर में हम क्लेम अमाउंट डिसाइड करेंगे जो बिजनेस को मिलेगा बिकॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ फायर इन द प्रीमाइस. सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फायर इंश्योरेंस क्लेम. ऐसा करके यू हैव 4 चैप्टर्स इन द सिलेबस. ये 4 चैप्टर्स हमें करना है ये सेमेस्टर में इन द सब्जेक्ट Accountancy and Financial Management, AFM 2. Now, what will be the paper pattern as prescribed by Mumbai University? So, normally अगर offline examination होगा, now we are not sure whether it will be a online exam or a offline exam. तो ये जो paper pattern है, this is for the offline exam. अगर ये situation अभी on January 20 government will decide whether to open the colleges or not. अगर college open हो गया तो there are high chances that you will have a offline exam in this semester. अगर offline exam होगा तो what will be the paper pattern? There will be 5 questions, question number 1, 2, 3, 4 and 5. जिसमें पहला question जो रहेगा it will be a objective question जो 20 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें 2 सब क्वेश्चन रहेगा A and B. सब क्वेश्चन A में there will be 12 questions out of which you have to answer 10, and sub question B में भी there will be 12 questions out of which you will have to answer 10 for 10 marks. Total question number 1 will be of 20 marks, and the questions asked may be multiple choice questions, true or false, match the column, or fill in the blanks without objectives. Sorry, without options. Fill in the blanks without option. So आपको 20 मार्क्स मिलेगा इससे. एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 will be a practical question with internal option. And what will happen here, you will be asked either a 10 marks question or a दो, कोई अगर 10 मार्क का रहेगा तो 2 क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क का, बिकॉज ऑल द 5 क्वेश्चंस आर ऑफ 20 मार्क्स. तो 20 into 5 100 मार्क्स का पेपर रहेगा. और हर एक क्वेश्चन नंबर 2 में भी इंटरनल ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इंटरनल ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इंटरनल ऑप्शन, एंड ऑल द 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे. एंड इसके बाद यू हैव क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड ऑल द 4 चैप्टर्स विच यू हैव इन दिस सेमेस्टर इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर्स. सो थ्योरी प्रैक्टिकल्स में से कुछ भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में ए है जो 10 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5 बी में भी एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको अटेम्प्ट करना है. अगर ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना तो इसके बदले में यू हैव अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन जिसमें 6 क्वेश्चंस पूछेंगे आपको. कोई भी 4 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स ईच, 4 into 5 20 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन रहेगा. आप या तो 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या 20 मार्क्स के लिए 5 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट, 4 शॉर्ट नोट्स, आई एम सॉरी 4 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करो.
आपका आपका चॉइस है वेदर यू गो फॉर द 10 मार्क्स 2 थियोरी क्वेश्चंस और यू गो फॉर द शॉर्ट नोट्स 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। इसके साथ आपका 100 मार्क्स का एग्जाम का पेपर कंप्लीट होता है। एंड नाउ वी विल कम टू आवर फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट अकाउंट्स। Accounting for incomplete accounts. Now what do you mean by incomplete accounts? Incomplete accounts means यहाँ पे complete information, like for example whenever you prepare final accounts, trial balance is given to you all. तो यू ऑल आर अवेयर कि हम फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है एंड सम एडजस्टमेंट्स दिया रहता है। बट इन इनकम्प्लीट अकाउंट्स यू विल नॉट मे नॉट बी गिवन विद द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय ड्यूअल एंट्री, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, जहां पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इफेक्ट पास होने के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा, मीन्स सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एंड बेस्ड ऑन दैट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट्स। You will have to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet. So this incomplete accounts may be prepared by small organizations such as small shopkeepers, grocers, vendors, जो कि small business run करती है, या तो इवन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में भी कभी अकाउंट्स इनकम्प्लीट रह सकता है व्हेन देयर इज सम नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, ऐसे कुछ नेचुरल कैलामिटी हुआ कि उनका इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया। तो ऐसे टाइम पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो सकता है। या तो इफ देयर इज अ थ्रेफ्ट, देयर इज अ फायर ऑकरेंस इन द premise of the business, तो ऐसे सिचुएशन में भी there may be a incomplete information of the accounts। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें इनकम्प्लीट अकाउंट्स दिया रहेगा, जिस इंफॉर्मेशन को देख के हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे it is said partial recording of information related to assets, liabilities, expenses and incomes। क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमारे पास पार्शियल या हाफ इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। नाउ असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है रिलेटेड टू असेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। बट यहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, आपको पार्शियल या हाफ इंफॉर्मेशन रहेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम। दिस incomplete accounts can also be called as single entry system, and in case of this is followed in case of small shopkeepers or in case of large organization only when the accounts are incomplete due to any natural calamity or some theft or fire occurrence in the premises of the business. Now, what are the features of incomplete records? This is unsystematic method of recording transactions. Unsystematic method. Systematic method is double entry system. यहाँ पे आपको कुछ भी देखो, सपोज अ पर्सन इज डूइंग अ स्मॉल बिजनेस, तो उसको अकाउंट्स मेंटेन करना तो नहीं आएगा, वो अनसिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करेगा। आज पूरे साल में इतना सेल्स हुआ, इतना परचेसेस किया, इतना कैश बाहर गया, इससे उधार लिया, उसको पे किया।
तो all this will be not maintained in the systematic order. Books of accounts में maintain नहीं होगा. ये सब कुछ एक डायरी रह सकता है. If the person may have a diary and वो date wise डायरी में सब कुछ लिख के रखेगा. So all the information provided will not be systematic. Generally what happens, कैश ट्रांजैक्शंस एंड पर्सनल अकाउंट की ये मिस्टर अमित से इतना लिया, सुनील से इतना लिया, रवि को इतना पे किया एंड इतना कैश ट्रांजैक्शंस हुआ. कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड प्रॉपरली रहेगा, लेकिन असेट इतना खरीदा, इतना डेप्रिसिएशन, मतलब देयर में भी information but complete information नहीं रहेगा. There will be partial information, but generally cash transaction and personal account का records रहना चाहिए. But there is no information regarding कितना revenue हुआ, कितना losses हुआ, assets liability का complete information नहीं रहेगा. There may be only partial information, and different organizations may record according to their convenience and needs. मतलब ऐसा नहीं है. The rules and regulations, that is according standards जो इम्प्लीमेंट होता है वो नहीं होगा यहाँ पे. इट विल बी इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग. तो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इट विल बी व्हाट, इट विल बी इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग्स. सो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा. एक बिजनेस में डायरी में रिकॉर्ड किया, दूसरे बिजनेस में इट मे बी सम पीसेस ऑफ पेपर अरेंज्ड सिस्टमैटिकली. मतलब एवरी द यूनिफॉर्मिटी will not be there in this kind of businesses. Reasons for incompleteness क्या रहेगा? This system can be adopted by people who do not have the proper knowledge of accounts. I'm sorry, 1 minute. Who do not have the proper knowledge of accounting principles. So this account will be maintained by those people who, मतलब ये कोई साइंस फील्ड के हो सकते हैं, आर्ट्स फील्ड के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कॉमर्स फील्ड के ही हो, और ज़रूरी नहीं कि बहुत एजुकेटेड भी हो. तो दिस पर्सन who are undertaking this kind of business may not have the knowledge of accounting principles, and this type of accounts, incomplete accounts, is not very expensive. In expensive mode of maintaining records, the cost involved is very low, as specialized accountants are not appointed by the organizations. तो यहाँ पे ज़्यादा expenses incur नहीं होता, because हम specialized लोगों को appoint नहीं करते. And even the time consumed in maintaining records very less, because हम double entry system follow नहीं करते, एक जगह record किया, and therefore the time consumed also is very less. And we also do not appoint specialized people in the organizations, and only few books are maintained. इसके वजह से time consumed also is very less. This is very convenient mode of maintaining records, as the owner may record only important transactions according to the need of the business. Now next to one, limitations of incomplete records. What are the limitations of incomplete records? The limitations are double entry system नहीं follow करते, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो एक्यूरेसी नहीं रहेगा. The whatever अकाउंट्स वी आर प्रिपेयरिंग, उसका एक्यूरेसी हम गारंटी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ट्रायल बैलेंस दिया रहता है तो इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, बट बिकॉज द ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर, एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स कैन नॉट बी ensured. And what else? Correct ascertainment and evaluation of financial result of business operations cannot be made, because the
बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, इसलिए हम लोग जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है या लॉस कैलकुलेट किया है उसका एक्यूरेसी हम नहीं बता सकते। एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी डन। हम लोग प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इसके वजह से अगर हमें फंड्स का ज़रूरत होता है आउटसाइडर से तो हमें आसानी से नहीं मिलेगा, बिकॉज अवर business is small and because we do not have complete records, हमें फंड्स रेस करना इजी नहीं रहेगा। बिकॉज हमारे लिए फंड्स रेस करना आउटसाइडर से इजी नहीं है, देयरफॉर टू प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज ऑल्सो इज नॉट वेरी नॉट वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज हमारे पास इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें फंड्स इजीली नहीं मिलेगा। इसलिए फ्यूचर एक्टिविटीज सच एज एक्सपेंशन ये सब हम नहीं कंडक्ट कर सकते, बिकॉज we don't get the money so easily because incomplete records are maintained. Owners may face difficulty, great difficulty in filing insurance claim in case of loss of inventory by फायर और थ्रेफ्ट। अगर कभी अनफोर्सिन इवेंट हुआ, सपोज कोई लॉस हुआ बाय फायर और बाय थ्रेफ्ट, तो इंश्योरेंस क्लेम, बिकॉज हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा इतना स्टॉक लॉस हुआ या इतना स्टॉक चोरी हो गया, थ्रेफ्ट हो गया। That information also we will not get very easily because we do not maintain a proper accounting system. Accounting is not recorded, all the records what we maintain are incomplete, इसीलिए हमें कभी इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते वक्त भी बहुत डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स, हम जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उस टाइम पे भी टू कन्विंस द इनकम टैक्स अथॉरिटीज अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द इनकम, कि हमें इतना इनकम हुआ तो हम इसके हिसाब से टैक्स पे करेंगे। दैट also to convince the authority, tax authority also will be difficult because we don't have the proper records of the accounts, therefore there may be a difficulty in convincing the income tax authorities regarding the reliability of the income that we have calculated, computed. Now in this chapter what accounts we will be preparing, हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। डेटर्स नॉर्मली हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू डेटर्स कौन है, जिनको हम उधार में सेल करते हैं, टू कैलकुलेट, टू नो द क्रेडिट सेल्स हम डेटर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ना एट द एंड हमारा गोल क्या है, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, पर फाइनल अकाउंट में हमें सेल्स चाहिए, सेल्स में हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो क्रेडिट सेल्स हमें कैश डेटर्स अकाउंट से पता चलेगा। और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो डेटर अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने डेटर्स बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए, तो हमें कभी कुछ बिल रिसीवेबल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। फिर क्रेडिटर अकाउंट्स भी विल हैव टू प्रिपेयर इन दिस चैप्टर। क्रेडिटर अकाउंट से हमें परचेसेस पता चलेगा, हु आर द क्रेडिटर्स फ्रॉम whom we purchase goods on credit, तो क्रेडिट परचेसेस पता लगाने के लिए हम क्रेडिटर्स, एंड हमें फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिटर्स भी, सॉरी हमें ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, इसलिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करते हैं। और क्रेडिटर्स में से कितने लोगों को बिल्स में हमने कन्वर्ट किया, जिनको हम ये डेट में पैसा पे करने वाले, स्पेसिफिक डेट में पैसा पे करने वाले, इससे अगर बिल पेएबल का इंफॉर्मेशन दिया है तो बिल्स पेएबल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। कैश बुक टू नो द कैश ट्रांजैक्शंस इन द ईयर,
हमें कैश बुक भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है, एंड वी मे ऑल्सो प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट सो दैट वी कम टू नो द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पता लगाने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। ये सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद ओनली वी विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, एंड बैलेंस शीट आता है। तो इन एक्चुअली वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन ये सब प्रिपेयर करने के लिए हमें डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस शीट, इन सब में से कुछ चीज़ भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं या इसमें से कुछ चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर हमें इतना सब चीज प्रिपेयर करना है। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज अ लेंदी चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी मे हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स along with final account। तो इसके साथ मेरा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है, एंड विद दिस आई एंड टूडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।